سائنس دن بدن جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نئی نئی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا جاتا ہے۔ کبھی کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے تو کبھی کسی نئے ایلیمنٹ کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اور کئی بار سائنسدان ایسا پلانٹ خلا میں ڈھونڈ لیتے ہیں جس پر انسانی زندگی آرام سے گزر بسر کر سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سائنسدانوں نے دنیا کی تمام چیزوں سے پردہ اٹھا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور اس دنیا میں بہت سی مسٹریز بھری پڑی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ سمپل مسٹریز اور سوالوں کو ایکسپلور کریں گے جس کا جواب آج تک کوئی سائنسدان 100% یقین سے نہیں دے پایا۔ نمبر 1، دا انڈر گراؤنڈ مسٹری۔ اس دنیا کی سطح کے اندر آخر کیا ہے؟ ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ زمین کی تھوڑی بہت گہرائی تک کیا ہے، لیکن بالکل زمین کے بیچوں بیچ آخر کیا چیز موجود ہے یہ ہمیں آج تک نہیں پتہ لگ پایا، اور صرف اندازے لگا کر ہی کہا جاتا ہے کہ زمین کے سینٹر میں میگما بال ہے، اور کچھ لوگ سوچیں گے کہ سطح کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ پیٹرول، کوئلہ اور مختلف اقسام کے منرلز ہی پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ زمین کی تھوڑی سی گہرائی پر ہی مل جاتے ہیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں زمین کی بے تحاشا گہرائی یا زمین کے سینٹر کی۔ سائنٹسٹ بھی یہی سوال سوچ کر ایک گڈھا کھودنے لگے جو کہ قریباً 12 کلومیٹر کا تھا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ گڈھا دنیا کا سب سے گہرا کھڈا بھی کہلاتا ہے۔ آج تک کوئی انسان یا مشین بھی 12 کلومیٹر سے زیادہ گہرا کھڈا نہیں کھود پایا۔ اس گڈھے کا نام ہے کولا سپر ڈیپ بلیک ہول، اور یہ رشیا میں موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی بہت حیرانگی ہوگی کہ اس گڈھے کو بنانے میں تقریباً 26 سال لگ گئے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس گڈھے کو اور زیادہ کیوں نہیں کھودا گیا؟ آخر اسے 12 کلومیٹر تک جانے کے بعد ہی کیوں روک دیا گیا؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جب یہ کھڈا 12 کلومیٹر تک پہنچا اس وقت تک اس کا ٹیمپریچر بے تحاشا بڑھ چکا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ زمین کے اندر جاتے ہیں ویسے ویسے ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ آپ زمین کے کور تک جا رہے ہوتے ہیں جہاں میگما یا لاوا بھی ہوتا ہے۔ 12 کلومیٹر کی گہرائی تک جا کر اس گڈھے کا ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس کو اور گہرا کنٹینیو نہیں کر پائے۔ انسانی جسم تو کوشش بھی نہیں کر پایا، ساتھ ساتھ کوئی مشین بھی اس گہرائی میں کام نہیں کر رہی تھی۔ اس سے آگے کھودنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن کھودنے والی ہر مشین اس گہرائی اور ٹیمپریچر کی وجہ سے گلنے لگ گئی تھی، اور یہ گڈھا بہت زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا، اور اب سائنٹسٹ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس گہرائی اور نیچے آخر کیا ہے۔ روس میں بنائے گئے اس گڈھے کو ڈیپسٹ آرٹیفیشل پوائنٹ آن ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس گہرائی کے نیچے کیا، اس کو کوئی انسان نہیں جان پایا، اور اب صرف اس کی پریڈکشنز ہی کی جا سکتی ہیں، اور بے شمار تھیوریز ڈیفرنٹ سائنسدان اس پر بیان کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی 100% یقین سے نہیں بتا پایا کہ آخر اس کے نیچے ہے کیا۔ عام طور پر اگر جو ہمیں اسکول میں یا ٹی وی پر پڑھایا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ زمین کی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں، جیسے کہ کرسٹ، اپر انر مینٹل اور آؤٹر اینڈ انر کور، لیکن اس کے باوجود کئی ڈسکوریز ہوئی ہیں اور کچھ نیا سننے کو مل ہی جاتا ہے۔ 2014 میں سائنسدانوں کی طرف سے ایک ڈسکوری ہوئی تھی جس کے حساب سے اگر ہم زمین کی اور گہرائیوں تک جانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں صرف اور صرف پانی ملے گا، جس میں سطح کے اوپر موجود سمندر سے بھی زیادہ پانی ہے۔ دوستو، اس بات کو یقین کرنا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس وقت سن کر آپ کے لیے ہوگا،
लेकिन हम आपको बताते चलें कि नेचर नामी इंटरनेशनल वीकली साइंसी मैगजीन के मुताबिक ये हकीकत है, लेकिन उसका भी सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए हम उसे भी सिर्फ थ्योरी ही मानते हैं। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मून या चांद आखिर कैसे बना। दोस्तों, हमने चांद को हमेशा से आसमान के ऊपर देखा है और इसके बारे में कई कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि आखिर ये चांद बना कैसे। आप में से कुछ लोग ने बहुत सी थ्योरीज पढ़ी होंगी और ये जान लीजिए कि वो सिर्फ थ्योरीज ही हैं, ना कि 100% जवाब। थ्योरीज सिर्फ तब बनाई जाती हैं जब किसी भी बात का एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं पता होता। चांद की बनावट का सवाल भी कुछ ऐसा ही है। इंसानों के पास सिर्फ इन सवालों के लिए थ्योरीज ही मौजूद हैं। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाली थी और उनके मुताबिक जब ये दुनिया तख्लीक में नहीं आई थी तब चांद भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जब शुरू में ज़मीन की तख्लीक हुई तो इस दुनिया की रोटेशनल स्पीड या घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस दुनिया के टुकड़े टूटकर स्पेस में घूमने लगे और ग्रेविटी की वजह से वो टुकड़े जुड़कर गोल शेप इख्तियार कर गए, जिसे आज हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट दुनिया से अलग हुआ, उसके बाद इस दुनिया की स्पेस में रोटेशनल या घूमने की स्पीड नॉर्मल हुई और उसके बाद ही इस दुनिया पर जानदारों ने जन्म लिया। इसके अलावा एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि चांद कहीं और बना था और एक बार ये ज़मीन के पास से गुजर रहा था और ज़मीन की ग्रेविटी उस वक्त इतनी तेज़ थी कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस वक्त चांद को रोक लिया और आज तक चांद इस ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। लेकिन सबसे मशहूर थ्योरी, जिसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इस थ्योरी के मुताबिक कुछ लाख साल पहले एक बहुत बड़ी चीज़ इस ज़मीन से टकराई थी और इसलिए वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। इसके बाद वो तमाम टुकड़े जुड़कर चांद की शक्ल इख्तियार कर गए थे। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनमें से कोई भी थ्योरी आपस में मैच नहीं करती, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी चीज़ का एक्यूरेट आंसर मालूम ना हो तो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ थ्योरी ही दे सकते हैं। आखिर चांद कैसे तख्लीक में आया, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। नंबर 3, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। दोस्तों, जब भी हम कदीम ज़माने के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में माया और इजिप्शियंस या मिस्र का ही ख्याल आता है और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना भी गया है और इसी वजह से हम नॉर्मली स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते भी हैं। पर रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस या तारीख दानों के मुताबिक आज भी हज़ारों या लाखों ऐसी आबादियां या कौमें हैं जिनके बारे में आज तक इंसान जान नहीं पाया और कुछ तो उनमें से आज भी जिंदा हैं, जैसे कि नॉर्थ कॉन्टिनेंटल आइलैंड के कबीले के लोग। ये एक ऐसी कौम है जो अपने जजीरे पर किसी को नहीं आने देती और ना ही खुद उस जगह से बाहर जाती है। हर साल कोई ना कोई ज़मीन दोज पुराना शहर दरियाफ्त किसी न किसी जगह हो ही जाता है। इसका मतलब जैसा पहले के लॉस्ट या गुमे हुए कौमों के निशानात हैं, जैसे कि अटलांटिस और लायन सिटी, ये सब हज़ारों साल पहले मौजूद थी और लाखों की आबादी यहाँ रहा करती थी। बहुत से लोगों को ये सिर्फ कहानियाँ लगती हैं, पर अगर हम रिसर्चर्स की बात मानें तो ऐसी एक दो नहीं बल्कि हज़ारों या लाखों सिविलाइजेशंस हैं इस दुनिया में जिन्हें हमने आज तक खोजा ही नहीं है। हो सकता है आज भी ज़मीन के अंदर कई ऐसी कौमों के निशानात दफन हो चुके हों। हमें इस अजीबो गरीब दुनिया में कुछ भी मिल सकता है।
नंबर 4, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर फैक्ट है कि साइंसदानों के मुताबिक दुनिया का 95% समंदर अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के इतने बड़े पानी के एरिया में से 95% अनएक्सप्लोर्ड या साइंसदान अभी तक उन हिस्सों पर पहुंच ही नहीं पाए। दूर दूर और गहराइयों के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज तक इंसानों की रसाई हासिल नहीं हो पाई। जैसे समंदर है, वैसे ही इस दुनिया में लाखों केव्स या सुरंगें हैं जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, और ज़्यादातर जो सुरंग या गुफा पाई गई उसके बारे में भी यही नहीं जान सके कि ये बनाई गई हैं या खुद बनी हैं। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिसर्च की बेस पर यह अंदाज़ा लगाया था कि बिल्कुल समंदर की तरह इस दुनिया में जितने भी केव्स हैं उनमें से 90% को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर किया हुआ मुल्क माना जाता है। मीन्स के यहाँ की लगभग हर जगह को ही एक्सप्लोर कर लिया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क जहाँ तकरीबन हर हिस्से को एक्सप्लोर किया जा चुका है, वहाँ भी साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ 50% केव्स या सुरंगों को ही एक्सप्लोर किया गया है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा दिलचस्प गुफाएं मौजूद हैं और उन सुरंगों और गुफाओं में कितने ही अजीबो गरीब जानदार और मखलूक़े खुदा होंगी, ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम। नंबर 5, दोस्तों, आखिरी अनसॉल्व मिस्ट्री है ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत सिंपल लगेगा कि हम लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस हर जगह पढ़ चुके हैं, ये कोई अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं है। जबकि हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो 100% एक्यूरेट नहीं, सिर्फ थ्योरीज थी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी बात का जवाब मालूम नहीं होता तो अंदाज़ा या थ्योरी ही दी जाती हैं। लेकिन ये सवाल ये नहीं कि ग्रेविटी कितनी है, यहाँ सवाल ये होता है कि आखिर ग्रेविटी या कशिश सकल है क्या, फंडामेंटल लेवल पर ये क्या है और आखिर ये काम कैसे करती है। इन क्वेश्चंस को अगर आप गौर व फिक्र के साथ सोचेंगे तभी आपको इसका पॉइंट महसूस होगा, वरना आप यही समझेंगे कि इसका कोई सेंस ही नहीं है। ये कैसा बेतुका और अजीब सा बचकाना सवाल है। कई साइंसदान और थ्योरिस्ट का कहना है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, ये सिर्फ इंसान की बनाई एक थ्योरी है जिसकी बेस ही नहीं है, और ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आखिर ग्रेविटी इतनी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है क्यों? इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर मौजूद हैं: स्ट्रांग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात को होल्ड या एक जगह रखने की ताकत को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स भी माना जाता है। साइंसदान तो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये ग्रेविटी किस चीज़ की वजह से है और किस चीज़ की बनी हुई होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। कई लोगों का कहना है कि इस दुनिया में ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश सकल के कानून काम ही नहीं करते। पर ग्रेविटी आखिर किस चीज़ की बनी है, ये आज तक एक मिस्ट्री ही बनी रह गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।